میری باری آتے آتے جو آج کا یہ اہم ترین اور حساس موضوع ہے Order in the House, جعفر please. ایکسپریس پر Order in the House, جو please. دہشت گرد حملہ ہوا ہے، مستی خان صاحب تشریف مجھے فرمائیں اس تھوڑا بات سا. کی خوشی بچانی ہے صاحب، کہ بچانی پورے صاحب ہاؤس سے آپ بھی تشریف رکھیں، تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کریں. پورے مستی خان ہاؤس صاحب. سے مکمل اتفاق رائے سے ہم نے ایک جامع اور بھرپور قرارداد منظور کی اور گویا کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک آواز میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی. میں بھی اپنے چیئرمین اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، MQM پاکستان، اپنے تمام منتخب نمائندوں، اپنے کانسٹیٹیوئنٹس اور بالعموم پورے پاکستانی عوام کی جانب سے اس واقعے کی سانحے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں بلکہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے، نور عالم صاحب، تمام صوبائی جنید حکومتیں صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے اکابرین، میری ان سے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے we were just caught unawares، اچانک ہمیں پتا چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا، ایک ٹرین کو روکا گیا، پٹری کو بم سے اڑایا گیا اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا. جو جانوں کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے اس کو دور کریں. صرف مذمت کرنا اور اچانک ہمارے سامنے ایسے سانحے کا ہو جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے. ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور، ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. مرض اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں، ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے، اس کو فریز کر دے، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے، وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا، میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو، ہماری قومی سلامتی کو، اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہ بات درست ہے، ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی کسی نام نہاد
आज़ादी की तहरीक की शक्ल में हो, दहशतगर्दी किसी मजहबी इंटरप्रिटेशन तौजी या तौजी के जुमरे में हो, या उसे मजहब का नाम दिया जाए, या वो दहशतगर्दी किसी फिरका वाराना जो हम आंगी उसको पारा करने के लिए हो, दहशतगर्दी किसी भी शक्ल में हो, उसकी मजम्मत हमें अक्रॉस द बोर्ड करनी चाहिए। स्पीकर साहब, जब हम ये कंडेम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था पेशावर में, और उस वक्त पूरी कौम को यकजा करने के लिए, पूरी कौम को एक मायूसी से निकालने के लिए, एक कौमी यकजहती के लिए न सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो नुमाइंदा जमातें थी उस वक्त पार्लियामान में, उन्हें भी दावत दी गई वजीर आजम की तरफ से, और हमारे जो अस्करी इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके सरबराहान, हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी बुलाया गया, और कौमी सलामती, कौमी यकजहती के लिए एक कौमी इत्तफाक राय कायम करने के लिए एक संजीदगी से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, और जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का मुसव्वदा उस वक्त भी एमकेएम पाकिस्तान ने पेश किया था, अल्लाह के फजलो करम से उसी को बुनियाद बनाकर ये नेशनल एक्शन प्लान बाद में वज़ा हुआ है। उस नेशनल एक्शन प्लान में बहुत सारी बातों को दर्ज किया गया, बहुत सारे एरियाज को फोकस किया गया, और उसमें ये बात भी की गई थी कि आज जो हमारे सियासी मसाइल हैं, सियासी बहरान है, जो माशी बहरान है, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत की इफरीत सर चढ़कर बोल रही है। स्पीकर साहब, जो हमारे शहरों के हालात हैं, खास तौर पे वो शहर कराची जो पाकिस्तान को 60% से ज्यादा बराह रास्त उसके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, सूबाई एक्सचेकर में कराची का कंट्रीब्यूशन 95% है, लेकिन आज किसी की तवज्जो नहीं है। बलूचिस्तान में अगर कुछ भी होता है और कुछ भी होगा, अल्लाह ना करे, उसके बाद उसका सबसे पहला असर कराची पर होता है। हमें हर तरफ, हर जगह बंद बांधने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि नेशनल एक्शन प्लान में जो एक अहम बात की गई थी वो ये भी थी कि आर्टिकल 140A की सही तशरीह करके पाकिस्तान में ये नुमाइशी जमहूरियत की बजाय एक हकीकी जमहूरियत कायम की जाए, और एक शमूलियती शिरकती जमहूरियत के बगैर पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का क़याम, पाकिस्तान में तामीर और तरक्की का अमल, पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम, और पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ और दवाम मुमकिन ही नहीं है। आज वाज़े तौर पर यह बात सामने आ गई है बोलान बलूचिस्तान जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हुकूमत हो, हुकूमत की पार्लियामान में नुमाइंदा जमातें हों या अपोजिशन की जमातें हों, ऐसा महसूस होता है कि हम सब आवाम से डिस्कनेक्टेड हैं। उनके बुनियादी मसाइल पर शायद ये हाउस, कौमी असेंबली और सेनेट शायद उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और हमारी जो जमहूरी अमलदारी है, जो डेमोक्रेटिक रिट है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव रिट है, हमारी जो इंतजामी और हुकूमती अमलदारी है, वो हमारी लड़ाइयों की वजह से, हमारी आपस की पोलराइजेशन की वजह से इतनी कमजोर हो गई है कि आज पाकिस्तान में जगह जगह रियासत के अंदर रियासतें बन रही हैं। दहशतगर्द जो कि मुसल्लह हैं, जिनके पास इस असले की फराहमी की सारी सहूलतें मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बुरी तरह से फेल हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह है कि सियासी जमातें चाहे अपोजिशन की हों चाहे हुकूमत की हो, वो उस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकी। आज वक्त की पुकार है कि हम एक नेशनल कंसेंसस के जरिए से एक नेशनल एजेंडा वज़ा करें। आइंदा
10 साल, 20 साल या 30 साल के लिए इस पाकिस्तान को किस डगर पर चलाना है, हम उस पर बात करें। हर तरह की डिस्पैरिटी को, हर तरह की इनजस्टिस को, हर तरह की अनफेयरनेस को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं, ये हमें आज सोचना होगा और एक नेशनल एजेंडा वज़ा करना होगा, नेशनल एक्शन प्लान को रिव्यू करना होगा, जो इस नेशनल एजेंडे का इंटेग्रल और लाजमी पार्ट है। ये डिस्पैरिटी, ये नाइंसाफिया, ये एहसास महरूमी, सेंस ऑफ डिप्रिवेशन, जिसका जिक्र सदर ममलिकत ने भी कहा है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो दावे किए गए हैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, ये जो मशवरे दिए गए हैं पार्लियामान को और हुकूमत को, और ये जो नसीहतें भी की गई हैं, मैं इस विजन से पूरी तरह मुत्तफिक हूं जो बातें इसमें कही गई हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक पार्टी जो कि हुकूमत की एलाई है, हुकूमत काबीना में शामिल नहीं है, कई आईनी ओहदे लिए हुए हैं, लेकिन अगर सिंध में उनकी अपनी हुक्मरानी माजरत के साथ बदतरीन हुक्मरानी हो, करप्ट तरीन हुक्मरानी हो, 16 साल से ज्यादा उस हुक्मरानी के नतीजे में वहां पर दहशतगर्दी के वाकयात भी, उनमें भी इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। ऐसी ही सूरत हाल का फायदा उठाकर अपने हाइड आउट्स बनाते हैं ये दहशतगर्द। अब बलूचिस्तान से अगर ये दहशतगर्द, जिनकी कमीनगाहों में लोग हमारे अस्करी इदारे और कानून नाफिज करने वाले जाएंगे, वो वहां से भागेंगे तो उनकी सबसे पहली पनाहगाह कराची होगी, फिर कराची में जो है वो इस तरह के वाकयात का इर्तिकाब होगा। जनाब स्पीकर, मेरा ये कहना है कि जरूरत इस बात की है कि वजीर आजम एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल सानेह के बाद हुआ था और जिस तरह उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान वज़ा किया गया। लेकिन उस नेशनल एक्शन प्लान में कई नुकात ऐसे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर कम्युनिटी पुलिसिंग के निज़ाम की बात हुई थी। वो रुझानात जो मुख्तलिफ मोहल्लों में, जो बल्दियाती इदारों, मकामी हुकूमत और शहरी हुकूमत के जरिए से सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत तक पहुंचते हैं, जो एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जो नीचे से लोगों की सोच, जो लोगों की सोच में अगर एबरेशन है, उनकी सोच डिस्ट्रैक्ट हुई है, वो एहसास महरूमी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास महरूमी की वजह से एहसास एलिनेशन, एहसास बेगानगी की वजह से अगर किसी गलत रास्ते पे चल पड़े हो, तो निप इनटू द बड ऑफ द इविल के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी कनेक्टिविटी होनी चाहिए अवाम के साथ, जो कि वहां से आपको उनके रुझानात, जो उनकी सोच है, जो नजरियात उनके हैं, हम सब ये बात कहते हैं यहाँ बैठकर कि दहशतगर्दों का न कोई नजरिया है, न कोई मजहब है, न कोई फिरका है, न कोई मसलक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है कि अगर डिस्पैरिटी है, इनजस्टिस है, नाइंसाफी है और महरूमी है, तो उसे भी हमें दूर करना है। हमें कौमी मफाहिमत और कौमी इत्तफाक राय से एक कौमी एजेंडा वज़ा करके नेशनल एक्शन प्लान में, मैं समझता हूं कि अगर अब नेशनल एक्शन प्लान को हम रिव्यू करें और उसे MQM पाकिस्तान के इस आईनी तरमीमी बिल के जरिए से अगर बैक ना करें, मजबूत ना करें, जमहूरियत की बात हम करते हैं, जमहूरियत के दावे करते हैं, लेकिन अगर जमहूरियत की सबसे अहम, उसका सुतून, जो उसकी बुनियाद, उसकी नर्सरी शहरी मकामी हुकूमत और बल्दियाती इदारे, अगर वो बेइख्तियार हों, गैर मौसर हों, बेवसीला हों, तो फिर उसके बाद तो यही होगा ना कि हम आखिर में आके यही कहेंगे कि भाई फलक पर कोई साजिश हो रही है। सारा इल्जाम किस्मत पर डाल दें, तकदीर पर डाल दें कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर ही बारिश हो रही है।